Hello everyone. Welcome to lecture number 23, Unit 12, Aldehydes, Ketones and Carboxylic acid. As we know that from session number 22, we start a new functional group is carboxylic acid. And in last sessions, we almost completed a different structures as well as the common name and the IUPAC name of carboxylic acids. We know that we classified into two parts, aliphatic and aromatic. In aliphatic, we classified into mono, di, tri. Same way, in the case of aromatic, we classified into mono and di. So after the completion of this IUPAC nomenclature, in your textbook, there is a NCERT in-text unsolved questions 12.6. So now we solve these questions. Give the IUPAC name of the following compounds. Give the IUPAC name of the following compounds. So they give four different types of compounds. So now we start with the first one. So give the number 1, 2, 3. This is a phenyl ring. So the name of this compound is 3-phenyl. 3-phenyl and total 3 carbon. So it's called as an propanoic acid. Propanoic acid. Okay, fine, no problem. Next one. We start the number from here 1, 2, 3. Here 2-methyl. So there is the number 4, 2. So it's a butanoic acid or sometimes it's called as an, because this is CH3 twice. Okay, so the name of this compound is 3-methyl because it's a in branch form. 3-methyl. But, total 4 carbon. But. 2. Enoic acid. Enoic acid. Okay, then after our compound is 2-methyl. 2-methyl because we give the number from here 1, 2. 2-methyl. Cyclopentane because it's a nature is cyclopentane. Cyclopentane. And carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. Then after we give the number here in such a manner that because this is COOH, NO2, NO2 and NO2. So how we give the number? So some says that it's a 246. This, okay, give the number here from 1. So it's a 246. 246. So the name of this compound is 246. Trinitro, benzene, carboxylic acid, benzene, carboxylic acid or 246 trinitro benzoic acid. So these are about our 12.6. Okay, so now after the completion of our 12.6, now we switch over to our theoretical portions, and this theoretical portions is 12.6.2 and 12.6.2 the topic which is based on the structure of COOH group. Structure of COOH group. So it's a very good topic. Okay, so you have to understand what is the concept of this COOH group, how the structure, because there is a resonance phenomena that we have to observe in the COOH group. We know that once again electronic structure of COOH group. So a carboxyl, we know that this carboxyl group is made up of what? So it's made up of two different groups. C double bondo means carbonyl, right? So in our prior lecture when the introductions when given, so I always give the first introduction COOH. So this is hydroxyl. So the name is called as a carboxyl and it's acid in nature. So there is a carb from carbonyl, OXY from hydroxyl. So the name is carboxyl. So carboxyl is made up of a carbonyl group joined to a hydroxyl group. So in the carboxyl group, your carbon, this carbon, okay, is attached to two oxygen, one with a double bond and one with a single bond, right? So it's linked, okay, other by a, which is in turn is linked to a hydrogen atom by a single bond. So the remaining free valency of carbon atom of the carboxyl group is satisfied by a hydrogen or an alkyl group. So the electronic structure, for example, if I give the electronic structure, so which can be written like that, R, right?
here there is a single bond, C. Here double bond, oxygen, fine. Same way here the single bond of oxygen is also connected with a single bond, and now we place the now we complete the octet, right? So there is an octet of carbon, there is a same way from the alkyl group, oxygen group, or some people which is written like that, R, C, double bond O, O, H, and there is a lone pair overhead here and here, where in this case R is equal to either alkyl hydrogen, right, for the fatty acid, okay, for the carboxylic acid. Okay, so I think so you have a certain knowledge about the electronic structure that we have to study in our chemical bonding portions, okay, in standard 11th unit number 4. But practical studies what suggest that the electron and neutron diffraction studies, mind well, what? Electron and neutron diffraction स्टडीज. आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है? हमें मालूम है, जैसे हमने यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कर सकता है. यस, डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ ड्यूअल नेचर, इट्स अ वेव नेचर. तो पार्टिकल वेव नेचर डिफ्रैक्शन है ना, वो वेव नेचर की तरह से होता है, की वजह से हो सकता है. सो डिफ्रैक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है. इस तरह से न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज भी ये बता रही है कि COOH ग्रुप, ये जो प्रैक्टिकली बता रहा है, COOH है जो हमेरा है, वो प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर स्पीसीज है. तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लेनर क्यों हो सकता है? सो इट मीन्स दैट दिस सजेस्ट दैट द कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम, ओके, and 2 oxygen atoms and 2 oxygen atoms, right? तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा. तो उसी तरह से हम so the 2 sp2 hybridized orbitals of the carboxyl carbon overlap with the 1 sp2 hybridized orbital of each oxygen atom, while the third sp2 hybridized orbital of the carbon overlaps with either s orbitals of H atom or a sp3 orbital of carbon atom of the alkyl group to form a 3 hydrogen bonds. देखिए, मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल में भी आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? अब देखिए, मैं इसमें क्या बता रहा हूं. मेरे पास है R है, C है, यहाँ पे देखिए O है, फिर यहाँ पे क्या है? O है, H. There is a lone pair. Okay, same way here the p orbitals, because sp2 hybridization है, यहाँ पे भी p orbital है. Okay, so this is p orbital. We know that this is p orbital. सेम वे ये भी p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है. तो अभी क्या होगा इसमें? इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, दिस p ऑर्बिटल, राइट, विच इज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन विथ अ सिंगल बॉन्ड. सेम वे हियर द ऑक्सीजन विथ अ सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे भी p ऑर्बिटल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. सेम वे यहाँ पे भी हमें p ऑर्बिटल दिखाई दे रही है. तो अभी उसके साथ उसका क्या होगा? ओवरलैपिंग हो जाएगा. यहाँ से भी ओवरलैपिंग हो सकता है, इस तरह से यहाँ से भी ओवरलैपिंग हो सकता है ना. तो ये जो आपने ए फिगर में देख रहे हैं, ये जो मैं बी दिखा रहा हूं, ए में क्या है, मैंने थोड़ा सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन दिखाया हुआ है, लेकिन बी जो है वो मैंने डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल दिखाया हुआ. इसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ना, उसका डीलोकलाइजेशन है, यानी रेजोनेंस फिनोमिना हमें यहां पे दिखाई दे रही है. देखिए आप, ये जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ऑफ द कार्बोक्सिल कार्बन overlap with one sp2 hybridized orbital of each oxygen atom, while the third sp2 hybridized orbital of carbon overlaps with either a s orbital, यहाँ पे यानी हाइड्रोजन हो सकता है, यानी या अल्काइल ग्रुप हो सकता है. तो उसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. Now each of the 2 oxygen atoms on the carbon atoms are left with one unhybridized p orbital which is perpendicular to the sigma bonding skeleton. Okay. So now all these 3 pi orbitals being parallel overlap to form a pi bond which is partially delocalized. your pi bond है ना, वो delocalized है between carbon and oxygen atom on one side and carbon oxygen of the OH group on the other side. In short, हम nut cell में क्या बोलेंगे? RCOOH may be represented as a resonance hybrid. अभी मैं आपको इसका resonance hybrid भी मैं दिखाना चाहता हूँ. देखिए,
मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, सेम वे यहाँ पे OH है, राइट। तो यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा पाई का यहाँ पे, सेम वे एट दैट टाइम लॉन पेयर इज delocalized over on CO. So the next structure which is denoted by the like CO, this is minus in nature, and same way here double bond OH, so it's a plus in nature. So there is a resonance phenomena. अभी कई बच्चे इससे हमें पूछ रहे हैं कि ये इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस है। यस डेफिनेटली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेजोनेंस इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास CO बॉन्ड है, CO सिंगल बॉन्ड है इन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, उसका 136 पाइकोमीटर का मुझे बॉन्ड लेंथ मिला है। जैसे उसका नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है 142 पाइकोमीटर होता है, तो इससे ये कम हो गया है ना, तो ये ज्यादा है, ये कम हो गया है। तो क्यों कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि योर C सिंगल बॉन्ड O पार्टिसिपेट्स इनटू रेजोनेंस फिनोमिना। जैसे अल्कोहल ईथर में आप देखेंगे तो 142 ही मिलेगा CO का बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे CO का बॉन्ड लेंथ 136 मिला है। ओके, ये तो मैंने ये फर्स्ट केस बताया। अभी मैं दूसरा केस आपको बताया। जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड O भी है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ नॉर्मली क्या होती है, जैसे नॉर्मली हम देख रहे हैं तो उसकी हो सकती है मेरे ख्याल से 123 पाइकोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे 122 पाइकोमीटर मिली हुई है। So C double bond or double bond length in carboxylic acid is slightly longer, 123 picometer than the normal C double bond or 120, राइट। तो 120 से ज्यादा मुझे, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे C डबल बॉन्ड हो, मुझे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है 120, यहाँ पे क्या मिला है 123। इसका मतलब मुझे ये थोड़ी ज्यादा हो गई है, 123 थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि इसमें रेजोनेंस चलता होगा, ठीक है। सो इसका मैंने कंपैरिजन आपको बताया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ से हम देख रहे हैं। कभी देखिए इसमें थोड़ा डिटेल है, लेकिन आपकी बुक में इतना अच्छा तरह से नहीं दिया हो, मैं आपको देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज द कंपैरिजन, अब देखिए मैं कंपैरिजन आपको यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूँ। कंपैरिजन क्या है, देखिए मैं कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड C डबल OH, मैं दोनों का आपका कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं। देखिए आप यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे मैं आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखा रहा हूं, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। तो उसमें क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे C है, O है, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया क्योंकि पाई शिफ्टिंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So we get a carbocation, this carbocation partially negative charge है, यहाँ पे partially negative, ओके। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 है। अगर हम कार्बोक्सिल की बात करें, ये तो मैंने आपको दिखाया है कार्बोनिल का, अभी मैं कार्बोक्सिल की बात कर रहा हूं, तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, H है। अब पहले देख लीजिए यहाँ पे, मुझे पता है O is more electronegative, so at that time your lone pair which can be shifted over the C single bond O, so we get one resonating structure or sometimes called as a canonical structure too, okay। so ये canonical structure मुझे क्या मिला हुआ है, ये माइनस पोजिशंस है और यहाँ पे क्या है O है, ये हो गया है मेरे पास। अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन है, राइट। तो अभी ये जो अपना लॉन पेयर है वो यहाँ सिंगल बॉन्ड के ऊपर शिफ्टिंग करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए आप फिर से देखिए आप, यहाँ पे C है, O है, वो तो माइनस पोजीशन में ही चला गया है। यहाँ पे क्या होगा, O है, H है, राइट, ये डबल बॉन्ड है और ये प्लस चार्ज में हो गया कंफर्म। तो मेरे को ये स्ट्रक्चर नंबर क्या मिला है, 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है। अब बिल्कुल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो अभी समझा रहा हूं, क्योंकि कहीं पे भी इसका डिस्कस नहीं किया हुआ है। सो हाउएवर इन द कार्बोक्सिल ग्रुप कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे मिले, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे 3, 4 एंड 5 है, विच कैन बी रिटन इन दिस मैनर। अभी इन बोथ स्ट्रक्चर अब देखिए, इसमें 3 और 5 का आप देखिए, वहां पे कार्बन है 2 ऑक्सीजन के साथ, दे हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर रेस्पेक्टिव वैलेंस, राइट। वाइल स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए, अब स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर नंबर 4 इज लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने रेजोनेंस में वो जो मेरा जो इसके
किस तरह से हमें दिखाना है प्रेजेंटेशन, इसके हमने कहीं लो उसको बताए थे, राइट? So in other word, the two important resonance structure of carboxylic acid are 3 and 5. अभी 3 और 5 in both the structures your carboxyl carbon is electrically neutral. यहाँ पे कार्बन आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है. However, in case of or in case of aldehyde and ketone, only one structure is electrically neutral. क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन प्लस है. So as a result, carboxyl carbon of the resonance hybrid is less positive and has less electrophilic than the carbonyl carbon of the aldehyde and ketone. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, फिर से देखिए आप, मैं क्या बता रहा हूं, कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड is less positive and hence less electrophilic than the carbonyl carbon of the aldehyde and ketone. So however, it may be noted that like carbonyl group, carboxyl group is also polar due to the resonance structure. यहाँ पे resonance चल रहा है, यहाँ पे भी resonance चल रहा है, लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूं कि थोड़ा वो थोड़ा कार्बोक्सिल कार्बन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से वो थोड़ा लेस पॉजिटिव हो गया है, हेंस लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है. तो ये आपको मैंने ये जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है? ओके, अभी जो आपको नेक्स्ट पॉइंट है, राइट, वो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको. इट्स नाउ वी मूव टू द मेन पॉइंट्स. इट्स द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं 12.7 है मेरा पॉइंट्स, मेथड्स of preparations of COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन है वो मैं दिखाना चाहता हूँ. तो मैं कैसे इसका प्रिपरेशन से मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो इसमें कई मेथड्स है, मेरे पास कई मेथड्स है वो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, जैसे मेरे टेक्स्ट बुक में दी गई है. तो फर्स्ट मेथड जो हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है वो है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. क्या दिया हुआ है हमें? प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड. सो फर्स्ट सम ऑफ द प्रिंसिपल जनरल मेथड्स. ओके, ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो मेथड है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरी टेक्स्ट बुक में दी गई है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड. ये हमने पढ़ा हुआ है, यस पढ़ा हुआ है. जैसे मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेंगे, ठीक है? तो वो चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में वाया एल्डिहाइड से. सेम वे इफ द एल्डिहाइड इज also oxidized with the help of strong oxidizing agent like acidic KMnO4, basic KMnO4, acidic K2Cr2O7. लेकिन हम जो PCC यूज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में तो वो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा. So it means that the primary alcohol and aldehydes are readily oxidized to the corresponding carboxylic acid, right? तो हम कौन से यहाँ पे, जैसे मैं न्यूट्रल KMnO4 भी ले सकता हूँ, न्यूट्रल KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले सकता हूँ. फिर मैं एसिडिक और एसिडिक और बेसिक भी मैं ले सकता हूँ. ओके, फिर मैं यहाँ से मैं एक ये भी ले सकता हूँ K2Cr2O7 H2SO4 यानी एसिडिक K2Cr2O7 भी ले सकता हूँ. फिर मैं यहाँ तीसरा में ये भी ले सकता हूँ, मैंने एक बार आपको दिखाया था CrO3 into H2SO4. इसको मालूम है आपको मैंने क्या बोला था, उसको जॉन्स रिएजेंट मैंने बोला था. सो ये जॉन्स रिएजेंट की वजह से भी मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ. लेकिन अब देखिए इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है, अब देखिए oxidation with acidic K2Cr2O7 or CrO3 in acidic media often gives some amount of ester, यहाँ पे मुझे एस्टर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? Therefore, oxidation with KMnO4 in neutral और alkaline medium is preferred. तो इसकी वजह से क्या होगा कि KMnO4
तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा मेरे लिए क्या होगा, KMnO4 है, वो जैसे न्यूट्रल भी हो सकते हैं यानी और एसिडिक या बेसिक, राइट। तो हम इसको लेना चाहेंगे तो अच्छी तरह से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो सकता है। So under these conditions, potassium salt of acid is first formed, which upon treatment with dilute H2SO4 gives a primary carboxylic acid। देखिए मैं आपको ये इसका बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास है RCH2OH। This RCH2OH is nothing but we know that it's a primary alcohol. Now this primary alcohol when reacts with KMnO4 KOH, okay, so first is converted into, इसमें क्या होता है देखिए, RCOH तो बन ही गया था लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडिया है तो उसने उसका पोटेशियम कार्बोक्सिलेट हो गया है। देखिए आप, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट का मुझे प्रेसिपिटेस मिला हुआ है, ठीक है। उसको मैं एसिडिफाइड करूंगा क्योंकि यहाँ पे बेस का जो है मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सही है, आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं इसका एग्जांपल्स भी आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास है CH3CH2OH। वी नो दैट इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। नाउ दिस इथाइल अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज विद KMnO4 KOH। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो आई गेट अ प्रोडक्ट CH3COOH। वी नो दैट इट इज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है CH3CH2CH2OH, यानी मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल मेरे पास है ब्यूटेन 1-ऑल। तो सेम वे ब्यूटेन 1-ऑल का इस तरह से ही ऑक्सीडेशन करूंगा तो सेम नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास होंगे, इसमें कोई या इंक्रीज या डिक्रीज कार्बन नहीं होंगे। सो आई गेट अ प्रोडक्ट इज ब्यूटेनोइक एसिड। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो है बेंजाइल अल्कोहल। देखिए ये बेंजाइल अल्कोहल है, वो अल्कोहल ही है, एरोमेटिक रिंग डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो उसका भी इस तरह से ही हम जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा बेंजोइक एसिड। सो आई गेट अ बेंजोइक एसिड सेम वे, राइट, फाइन। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और थोड़ा बढ़िया एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। CH3 है, CH2 है, 8 टाइम्स है, यहाँ पे भी CH2OH, यानी मैंने डेकेनॉल दिया हुआ है, डेकेन 1-ऑल। तो मुझे क्या मिलेगा, डेकेनोइक एसिड मिल जाएगा, CH3 CH2 8 टाइम्स COOH। सो दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज अ डेकेनोइक एसिड। तो इस तरह से अभी देखिए ये तो मैंने सभी अल्कोहल का दिया, लेकिन एल्डिहाइड्स आर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इवन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ CH3CHO है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या है, CH3CHO है। तो मैं CH3CHO का माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट, आपको मालूम है क्या कर रहा था, मैंने क्या किया था, टॉलेंस रिएजेंट यूज किया था उस टाइम, टॉलेंस रिएजेंट, या मैं फैलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकता हूं। तो विच इज कन्वर्टेड इनटू CH3COOH। इसके लिए मुझे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है तो मैं एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग। इसमें क्या है, कोई कार्बन का जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, देखिए। तो ये मैंने आपको जो दिखाया था वो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स का मैंने दिखाया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं अल्काइल बेंजीन और अल्कीन के साथ बात करूंगा, ठीक है।